Yeah, good morning. So, how was yesterday? मंजू मैम Good, 2 ma'am. दिन How? लिखा क्या नहीं खुद से कुछ? Yes, I wrote, ma'am. I wrote. I cannot hear you. I wrote, ma'am. Okay. अच्छा, मेरे यहाँ से वॉल्यूम बंद था. Uh-huh. Uh, How was your day, ma'am? nice, I enjoyed birthday. And I was very tired actually, so that is why I said कि Hmm. I will not take the class. We came late on Sunday night. तो like, बेटी ने मैनिक्योर पेडिक्योर हेयर स्पा के लिए यस मैडम वाली को भेज दिया था घर पे संडे के दिन सुबह में. Okay. Good time. Good, ma'am. I have enjoyed my birthday. Chalo, let's start. Join your hands, close your eyes. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath. Take one more deep breath. Feel the air and release it, saying thank you. Focus on your breathing under your nose. Just observe how your breath is coming and going on its own without any pressure. Feel that breath and bring your focus to the present moment. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for the divine nature. Thank you, universe, this beautiful morning. The sun, the sky, the space, air, and the fire elements, which are there outside and inside me, and are helping me in all ways. Thank you for the abundance that is flowing to me, and I am becoming better every day. Thank you for the happiness which I am feeling day by day, and trying to be more happier and happier. Even when things go wrong, I keep myself above the line and remain happy. And that is really helping me. Thank you for keeping me happy. Thank you for making me realize happiness does not require money. Happiness does not require materialistic things. It's on us how to be happy by giving and sharing. Also, I can be happy. Thank you for making me realize that I can remain happy by giving, by sharing. Thank you, universe, for guiding us through this journey and bringing us in this gratitude journey. Thank you for giving us the intelligence for understanding what we need to and bring that into our life and live a joyful life. Thank you. Thank you. Thank you.
Open your eyes. Share the screen. Then very quick reading I will be taking. I'll not read the whole chapter. Today's 14th chapter, the impression. See, this has only 17 chapters. So we are already on 14th chapter. So we, in a day or two, we will be finishing is then we will go to, like having meditation, starting the day with meditation first for 10 minutes and then writing the gratitude, maybe in a different way we will be doing little advanced techniques. So the impression of increase, what does that increase means? Abundance. Increase means your abundance. So whether you change your vocation or not, your actions for the present must be those pertaining to the business in which you are now engaged. So here he is saying ki whether you change, like if you want to become rich, some people say, "Na, I will change this job, I will change this business, I will open some new business, then only I will become rich." So he's saying whether you change or you don't change, but your action, whatever you are doing now in your present moment, in your present job or your present business should be good. Your action for the present must be those pertaining to the business in which you are now engaged. ऐसे नहीं कि मेरी अभी मुझे जॉब छोड़ना है तो मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दूँ, right? So you have to be continued, into the creativity of what you're doing. So you can get into the business you want by making constructive use of the business you are already established in. जो आप currently job कर रहे हो, जो भी आप करंटली बिजनेस कर रहे हो, आप उसमें भी ग्रो कर सकते हो डूइंग इट इन अ सर्टेन वे. So here he's saying कि the key thought of all your efforts must be to convey to their minds the impression of increase. और अब जैसे 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 आप आपके मन में आता है, सी इफ यू गो टू सी नेचर ऑल्सो हैज अबंडेंस. हर चीज बढ़ रही है ना. नेचर में कभी आपने देखा है कि पानी घट गया, हवा कम हो गई? ये अभी हमारी गलतियों की वजह से हो रहा है. ओके, हमारी गलतियों की, बिकॉज वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, वी आर नॉट टेकिंग सेविंग द वाटर, वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द वाटर, बट एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. कभी ऐसा लगा कि हवा कम हो गई? So he's saying कि increase is what all men and all women are seeking. सबको abundance चाहिए, right? It is the urge of the formless intelligence within them seeking fuller expression. यानी जब तक हम abundance को चाहते नहीं है, हम बढ़ते नहीं है आगे. So it is a need, he's saying, कि हर एक इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं. And that is what God has made us for. If you sit in one place, do you think you will get anything? No, you will be just cribbing, complaining. Will you attain something? No. So the desire for increase is inherent in all nature. Nature में भी abundance है. Nature में भी सब चीजें increase हो रही है. All human activities are based on the desire for increase. People are seeking more food, right? More clothes. हमको कपड़े buy करने की जरूरत पड़ती है. हम एक घर लेते फिर ऐसे लगता है कि और बड़ा घर ले. सो बेटर शेल्टर, मोर लग्जरी, मोर ब्यूटी. एक ब्यूटी आइटम मंगाते हैं, नायका सेल लगाती है, हम फिर मंगा लेते हैं, राइट? सो मोर नॉलेज, वी आर सीकिंग मोर नॉलेज, वी आर ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, मोर प्लेजर. दिस इज व्हाट बेसिकली एक इंसान की जिंदगी होती है. ओके, so every living thing is under this necessity for continuous advancement, where increase of life ceases dissolution, death and settlement at once. यानी we are in continuous advancement. हम आगे ही बढ़ रहे हैं, हम पीछे नहीं जा सकते, राइट? एवरीवन वांट्स दैट कि हम आगे बढ़े, राइट? ग्रोथ भी कैसे होती है कि हम एज अ बच्चा पैदा होते हैं, फिर स्लोली 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 एवरी ईयर हाइट, बॉडी, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग. तो ग्रोथ इज एवरीवेयर. तो वी इट इज नॉट रॉन्ग टू हैव अबंडेंस. हम कोई कोई बोलता है ना कि नहीं नहीं, ज्यादा लालच नहीं करनी है, ज्यादा ये नहीं करना है. But he's saying there is nothing wrong. He said Jesus also said कि only those who gain more retain any from him who had not shall be taken away. For those who gain, यानी जिसके पास है और अगर वो उसको अपने पास रख के किसी को बांटता भी है, okay, he gives, he seeks for the improvement of others also. अपने साथ दूसरों को भी बढ़ाता है, अपने साथ में दूसरे लोगों को भी लेके चलता है. देन इट विल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम हिम. बट अगर कोई ऐसा लालची हो जाए, सिर्फ पैसा मेरा ही होना चाहिए, मैं ही सिर्फ तरक्की करूंगा, और फिर उसके लिए वो कुछ गलत लोगों को सताता है, अपने एम्प्लॉयज को सताता है कि नहीं, मेरी मेरी
ऑफिस में ये बढ़नी चाहिए, मेरे इसमें sales बढ़नी चाहिए, you have to work like that, and he's troubling every time, and he's only thinking about his own and not betterment of his employees, तो वो कंपनी भी कभी ग्रो नहीं होती है. So that is what he's trying to tell here. So the normal desire for increased wealth is not an evil, यानी बुरा नहीं है, right? सबको चाहिए कि yes, see her deepest instinct of the nature is all men and women are attracted to him who can give them more means of life. तो अगर एक ऐसा इंसान है, सपोज आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अंबानी, ओके, he definitely, he came into those businesses, he worked hard, we cannot deny that, but he's giving employees, employment to several people. Steve Jobs, right? What did he do? He's giving employment to the different people. तो he is improving their lives also. तो आप देखोगे कि जो भी दुकान में जो मालिक रहता है ना, अगर वो अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज का ज्यादा ध्यान रखता है, आप देखोगे उसका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो होता है. बिकॉज देन दोज पीपल स्टार्ट थिंकिंग, व्हाई नाउ डेज दे हैव ट्रेनिंग्स इन द offices and all, for these reasons only, they're training people's minds कि to own the company. they say कि आप आपकी कंपनी है, आप आपकी कंपनी समझ के काम करो. Why this is happening? Because when people start taking the ownership of that place, they increase, so the abundance increases, तो उनको भी फायदा होता है. So he's saying in following the certain way as described, हमने सीखा कि एक certain way होता है which way you should follow, जहाँ पे आप दूसरों का हक नहीं मार रहे हो. You are getting continuous increase for yourself and you're giving it to whom you deal with also, यानी जिसके साथ आप डील कर रहे हो. ओके, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप चीट करके बिजनेस नहीं करोगे कि यार मैं इसको ज्यादा पैसा लगा लूं, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा और मैं रिच हो जाऊंगा. So that way is saying that you are creative center from which increase is given off to all. सबके पास है वो, हम खुद ही अमीर बन सकते हैं अगर हम हमारा क्रिएशन यूज करें. We should not go into competition. That he is saying. So आप जिसको भी यानी कांटेक्ट में आओ, you try to make it a point that they are also benefiting from it. They are also benefiting from it. See, Reliance, Airtel and all, they started giving postpaid. Why they started giving postpaid? They said, let us give us the facility first and then take the money. Okay? कि ठीक है, some people cannot pay in advance. So let's give the facility first and then take the payment. So no matter how small the transaction, even if be selling of a stick of a candy to a little child, put into it the thought of increase and make sure that the customer is impressed with the thought. तो यहाँ पे आइडिया दे रहा है कि आप इवन छोटी चीज भी बेचते होगे ना, उसके अंदर आप उसको अच्छी थॉट दे के दो, अच्छी थॉट दे के बेचो, तो उससे क्या होगा कि आपका कस्टमर भी इम्प्रेस्ड हो जाएगा. When you give something extra, convey the impression of advancement with everything you do so that all the people shall receive the impression that you are advancing the man. यानी आप उसको हेल्प कर रहे हो. सॉरी, यानी सामने वाले इंसान को भी आप हेल्प कर रहे हो, सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं देख रहे हो. So here he is saying that the unshakable faith that you yourself are in the way of increase, and by letting this faith inspire, fill and permeate your act, आपका हर एक एक्शन इतना फेथ के साथ होगा कि आप खुद का तो भला कर रहे हो, आप दूसरों का भी भला कर रहे हो. यानी अपने साथ जब आप दूसरों को भी इंक्रीज देते हो, द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज का मतलब होता है कि यू आर गिविंग एन abundance to other people also. You are thinking about other people's advancement also. You're not just saying कि हाँ हाँ मेरी फैक्ट्री बढ़ जाए, मेरा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, मेरा माल बढ़ जाए, एंड आई एम गेटिंग प्रॉफिट. यू आर थिंकिंग कि मेरे एम्प्लॉयज को क्या फायदा होगा, राइट? उनको मैं क्या दूंगा. So do everything that you do in the firm conviction that you are an advancing personality and that you are giving advancements to everybody. यानी जब आप कोई चीज कर रहे हो तो आप खुद के ऊपर भी ये भरोसा रखो कि यू आर improving day by day, you are advancing day by day, and you are advancing the other people also. So feel that you are getting rich, and in doing so you are making others rich.
एंड कन्फरिंग बेनिफिट्स ऑन ऑल। यानी आप खुद तो रिच बन रहे हो, आप दूसरों को भी रिच बना रहे हो, बट आप ब्रैग मत करो अपने सक्सेस को, ओके। एंड डोंट बी बोस्टफुल, सबके सामने जाके ज्यादा ज्यादा यानी बड़ी बड़ी बातें करना कि यार मैं तो इतना बड़ा बन गया, मैं तो ये, वो सब मत करो। सो वेन wherever you find a boastful person, you will find that who is secretly doubtful and afraid। तो जो भी अपने बारे में बड़ाई, यानी थोड़ा सा पैसा आ गया फिर मैंने बड़ाई करना शुरू कर दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने, यू विल सी वो अंदर से डाउटफुल रहता है और हमेशा डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसका सक्सेस फ्रीली नहीं आया, यानी उसका अंदर डर है। He just wanted it for the power. You're getting. So that is why the moment it came to him, he started speaking about boastfully about it. तो वो जो उसके पास रिचेस आई है ना, वो हमेशा टिकेगी नहीं, क्योंकि वो हमेशा डाउटफुल और डर में रहेगा कि मेरा पैसा चला तो नहीं जाएगा। So simply feel the faith and let it work out in every transaction. Let every act and tone and look and express quiet assurance that you are getting rich. अपने आप को हमेशा बोलो कि yes, I'm already rich. Words will not be necessary to communicate this feeling to others. They will feel the sense of increase when in your presence you will be attracted again। यानी अगर आप अपने आप को रिच बताना चालू करते हो, यस आई एम रिच, आप देखोगे यू आर अट्रैक्टिंग दैट टाइप ऑफ पीपल हु फील योर रिचनेस and see that you give them a huge value greater than the cash value you are taking from them। तो आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो, आप जिसके साथ भी बिजनेस कर रहे हो, यू आर गिविंग देम अ वैल्यू ग्रेटर देन द कैश वैल्यू। तो अगर आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हो, आप उसको एटलीस्ट 110 का वैल्यू दे रहे हो। आप ये ध्यान करो। तो वेन यू स्टार्ट गिविंग योर कस्टमर्स समथिंग एक्स्ट्रा सर्विस, समथिंग एक्स्ट्रा, सी, Hmm. Manju is in travel agency. If she starts giving her customers something extra, with the ticket, with whatever it is, if she starts giving something extra, she tells her boss कि I want to give something extra, and you will see कि अरे वो पर्सन खुश हो जाता है कि यार इसने मुझे डिस्काउंट दिया, अरे इसने मुझे ये वाली चीज एक्स्ट्रा दी है, मुझे गिफ्ट दिया साथ में। ही विल गो एंड स्पीक टू अनदर पर्सन, ओके। वो अपनी फ्रेंड्स में बात करेगा, फिर वो अपनी फ्रेंड्स को रेफर करेगा। दिस इज हाउ द बिजनेस ग्रोज। So you have to start becoming, thankful to that client, start giving extra services. So that time those services increase. So take an honest pride in doing this and let everybody know, and you will have no lack of customers. तो जब आप ऐसा करना शुरू करते हो, पीपल विल गो वेयर दे आर गिवन इंक्रीज। तो जहां पे भी अबंडेंस होगी, देखो दूसरा भी एक ट्रैवल एजेंसी टिकट दे रहा है, मेरा भी ट्रैवल एजेंसी टिकट दे रहा है, बट अगर इफ आई एम गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा, विल द पीपल कम टू मी और नो? पीपल विल कम टू Yeah. मी ना, यार ये तो इतना अच्छा डिस्काउंट दे देता है, अरे ये तो साथ में एक्स्ट्रा बैग भी दे रहा है अपने को ट्रैवल का, राइट? सो पीपल विल मूव दैट साइड, बिकॉज यू आर, दे आर गेटिंग इंक्रीज, सो योर बिजनेस विल इंक्रीज रैपिडली एंड यू विल बी सरप्राइज्ड at the unexpected benefits which will come to you, and you will get the benefits। एंड धीरे 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 आप उस बिजनेस में रिच होते जाओगे। दिस इज वॉट इज सेइंग। बट इन डूइंग दिस यू मस्ट नेवर लूज द साइट ऑफ योर विजन ऑफ वॉट यू वॉन्ट और योर फेथ और पर्पस टू गेट वॉट यू वॉन्ट। बट आप जब ये काम कर भी रहे तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस पर्पस से वो काम कर रहे हो। You should not, have something wrong about others' motives, nothing wrong about other people। So nothing is so pleasant to the unformed or unpartially developed mind as the exercise or of power of dominant। बट अगर आप पावर दिखाना चालू कर देते हो, ये मेरी कंपनी तो आगे हो गई, देख तेरी कंपनी तो आगे बढ़ी नहीं, देख मैं कितने कस्टमर ला रहा हूँ, मैं कितना ये कर रहा हूँ, then you're not going to get the desired result। So the desire to rule for selfish gratification, बहुत सारा आपने देखा होगा ना, politicians and everything, they just want to rule, and that for that they are fighting and they are creating lots of ruckus on the earth। So he's saying, don't go for the power battles. Don't go, where other peoples are being killed, doing anything, just because आपको ये चीज चाहिए तो आपने उसका हक मार के अपना business grow किया। That should not be। So today the main motive in the business and the industrial world is same। Men marshal their armies of dollars and lay waste the lives and the hearts of millions in the same। यानी बहुत सारे लोग अपने लोगों की जान ले लेते अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, कि यार इंसान मर रहा है, उसको शॉक लग रहा है, उसको क्या हो रहा है फैक्ट्री में, दे लीस्ट वरिड। सो
he's saying that people should not become more commercial also. They have to look into the welfare and the benefit of the people also. So Jesus saw in this desire for mastery and for moving impulse of that evil. और Jesus ने भी यही बोला था. He pictures the lust of the Pharisees to be called master, कि आप अपने आप को ज्यादा डोमिनेंट मत बना दो ओवर अदर्स, कि हम दूसरों को कम समझना चालू कर दे, कि जब हमारे पास पैसा आ जाए. सी रिचनेस इज टॉकिंग अबाउट डज नॉट मीन कि व्हेन यू बिकम रिच यू हैव अ पावर, कि आप दूसरों को सताना चालू कर दो, आपसे लेस फॉर्चुनेट लोगों के ऊपर यू बिकम डोमिनेंट. यू शुड नॉट डू दैट. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग हियर, कि यू शुड नॉट बिकम दैट वे. You should not become कि I am the master, I am this, मैं बॉस हूँ, मैं यही कर सकता हूँ, मैं ही वही कर सकता. He said you should not do that. So in order to master your environment and your destiny, it is not at all necessary that you should rule over other fellow men. दूसरों के ऊपर जरूरी नहीं है कि आप रूल करो. बी वेयर ऑफ द कॉम्पिटिटिव माइंड. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यू आर नॉट गोइंग इन टू कॉम्पिटिशन विद द अदर पर्सन, यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू. No better statement of the principle of creative action can be formulated than the favorite declaration of the late golden rule, Jones of Toledo. What I want for myself, I want for everybody. तो जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि जो मुझे चाहिए, I want everyone. Here, what he's talking about? Blessings. हम बोलते हैं ना दूसरों को ब्लेस करो कि उनके ड्रीम्स पूरे हो. वाई डू आई से कि ब्लेस करो. किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो ब्लेस करो, हील देम. जब हम कोई दूसरा अपनी ड्रीम बोलता है तो उसको ब्लेस करो. वाई? बिकॉज व्हाट आई वांट फॉर माई सेल्फ आई वांट फॉर एवरीबडी. तो जब आप दूसरों की ड्रीम्स को ब्लेसिंग्स देते हो, दूसरों की चीजों को ब्लेसिंग्स देते हो, you will see that you will start getting that. You start attracting that. You start attracting that. That is what here it is saying. So the main summary of this chapter is one thing: abundance. Getting abundance is not wrong. Whatever you want, you will get in life. Getting riches is not. Everything is advancing. Everything is advancing. We can think about advancement, growing higher, growing on the top, but it should not be, कि दूसरों के कंधों पे मैं पैर रख के आगे चलूं. The यहाँ से लेसन की समरी ये होती है कि यू शुड ऑल्सो थिंक फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स. यू शुड नॉट जस्ट से कि हाँ भाई मुझे मिल गया तो ठीक है, मुझे मिल गया तो बस हो गया, दूसरे भले जी रहे नहीं जी रहे. बट व्हेन यू टेक एवरीवन टुगेदर एंड मूव अहेड, यू गो टू द हायर लेवल जहां पे आपके रिचेस. एंड ऐसा भी नहीं करना है कि पैसा आ गया तो यू स्टार्ट बोस्टिंग टू द अदर पीपल. दैट ऑल्सो शुड नॉट हैपन. So that is the base of this chapter, base summary of this chapter. So let's start our writing practice. We write gratitude for parents. Manju ma'am, did you write yesterday gratitude? Yes, ma'am. Great. I'm happy that you're putting yourself into that habit. Because very important, you should. Every time I write with your pens, I say thank you. Okay, we'll write for parents. So what we can write for parents today? Chalo, bole. What you want to write for today? Like during delivery, they help me out. Yes, How Mangal. they help. During delivery, how they help me out. I cannot hear Mangal man properly. What she said? Oh, shit. She's saying during delivery, her parents had helped her, na, that she wants to write. Okay, so we can write about that. We can write about that. Even Manju ma'am, you can write, that you were delivered through mummy. So what pain she went through, we can write about that, right? Chalo, let's start from mummy only then. Gratitude for mummy.
I'm truly grateful to mommy that you took so much pain to bring me into this world. I'm truly grateful to mommy for bearing all that indigestion during when I was in your stomach. I am truly grateful to mommy because you had so much body pain when I was in your womb, but you did not take any tablet since it would harm me. I am truly, if I'm very fast, please let me know. Grateful to mommy because you bared the pain of stitches on your internal parts to bring me into this world. I am truly grateful to mommy. Sorry. Because you kept yourself awake when I cried at night due to hunger or in pain. हम जब रात में रोते थे, जब भूख लगती थी तो मम्मी अपनी नींद झला के हमको पिलाती थी दूध, या फिर हमको कभी कुछ पेन होता था तो मम्मी उठ के बैठती थी हमारे लिए। डैडी तो उठते नहीं थे। आई एम ग्रेटफुल टू मम्मी because she massaged me every night after I was born with सरसों का तेल।
आप देखो आपके मम्मी ने कौन सा तेल यूज किया रहेगा, अगर आपको कुछ याद है तो। आई एम ट्रूली, मंजू मैम यू शुड टॉक टू योर मदर एवरी डे। करते Yes, ma'am. आप करते हो, आने के बाद, काम से भी आने के बाद 5-10 मिनट बैठ Yes. के मम्मी से बात किया करो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल because I'm truly grateful to mummy because she gave me honey and good tea when I got cough, when I was born or was of 1 month. आपको घुट्टी दी होगी कुछ, हनी चटाते थे पहले, खांसी हो जाती थी तो। So I am truly grateful to mummy because she always put on warm clothes when there was winter season to keep me warm. I am truly grateful. आपको भी कुछ याद आता है तो बोलो मम्मी, because he gave me milk whenever I cried and demanded. Thank you, mummy, for fulfilling my demand. See, today's mothers, they say, let's uh, give mummy, let give Upar ka feed. They will ask maid to feed them. But see, our mothers, they got up. Every time they got up and they gave, right? हमको उठ के उन्होंने रात में दूध दिया होगा, हमने जब भी डिमांड किया, they gave their milk. So we should be thankful for that. Very important. हमने हमारी मम्मी पापा को थैंक यू नहीं बोला उस चीज के लिए. So I am thankful to mummy because she always gave me her warmth, and love when I cried and I felt safe near her chest. Correct? जब वो हमको गले से लगाते, हम रोते थे तो वो हमको यहाँ पे उठाते थे, तो we used to feel safe, right? And we used to stop crying. Done? Let me know.
ma'am, done. Let's keep your hands on your heart and feel your mother as if your mother is sitting right in front of you. And just tell her thank you. Thank you, Mummy, for all that you did for me when I was born. मेरे लिए इतना दर्द उठाने के लिए शुक्रिया. मेरे को अपना दूध पिलाने के लिए शुक्रिया. मैंने जब भी आवाज दी आपने मुझे दूध पिलाया. अपने आप की नींद गवाई. जब भी मैं बीमार पड़ी आप मेरे लिए खड़े रहे. मुझे उठ के फिराते रहे. हाथ में लेके झुलाते रहे. थैंक यू. थैंक यू मम्मी, मेरी हर डिमांड पूरी करने के लिए जब मैं बोल भी नहीं पाती थी. थैंक यू. मेरी उस भाषा को समझने के लिए जो मेरे मन में थी कभी. थैंक यू. दिल से थैंक यू मम्मी, दिल से. Thank you for all that you have done to bring me into this world. Thank you. Thank you. Thank you. अपने सिर पे हाथ रखो and feel that gratitude. Thank you. Thank you, Mummy, for your blessings. I know you are always there with me, whether you are there in this world or no. But I know your blessings are always with me. You are thinking of every day of my betterment. Thank you. Thank you. Thank you. Let's write for Daddy now. Who's joined from Samsung? No name? Mariam. Okay. So let's write for Daddy now. I am thankful to my daddy for taking Mummy to the hospital when I was in her womb. I am thankful to my daddy, whatever you say, your daddy, Abba, Appa, whatever. We are writing for parents, Mariam ma'am. हम उसके लिए लिखते हैं क्योंकि पेरेंट्स आर अ सोर्स एनर्जी एंड उन्होंने जो किया है उनके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं. सो वी नीड टू बी वेरी थैंकफुल फॉर देम even if they have done good bad to us, but we have to look into the good and be thankful. So I'm thankful to my daddy for taking me to the hospital every time when my vaccinations were due. हमारे वैक्सीनेशंस होते हैं ना बचपन में 1 साल तक, तो डैडी लेके गए होगे ना मम्मी को. So I am thankful to my daddy because you took me in your hands and
put me in the cradle when I cried a lot. I am thankful to my daddy for getting and spending money to get the good tea which mummy gave me. I am thankful to my daddy for spending money for all the gripe water, tonics, which was bought for me. I am thankful to my daddy for the money he spent to get Cerelac for me so that I get good nourishment. I am thankful to my daddy for spending money to get the nappies for making me comfortable. I am thankful to my daddy because he spent money to get warm blanket, warm sweater, cap, etc. for me so that I am protected from cold. तभी तो हम नहीं खरीदते थे ना, बट मम्मी पापा ने हमारे लिए ये सोचा है और लाए हैं. They spent money, time. So I am thankful to my daddy because he spent his time taking mommy and me to the doctors when I was unwell.
I am thankful to my daddy because he spent his time and petrol for me to take me to different doctors when I suffered from health breakdown. We don't say any disease or anything ना, so we'll say health breakdown. कभी हम बचपन में कोई हमको बीमारी हुई हो, कोई कुछ हुआ हो, तो हमको डैडी लेके गए हो गए. So we are going to write thank you for that. When you're done, if you don't remember your own things, you can write whatever I'm writing so that you start recollecting, your own. Chalo, let's keep your hand on the heart. Feel your daddy is right in front of you. Sitting, imagine that your daddy is right in front of you and you're saying this thank you. Thank you, daddy. दिल से शुक्रिया. दिल से शुक्रिया उन सब चीजों के लिए जो आपने मेरे लिए की. आप उठ के मेरे लिए जाते थे दवाइयां लाने, आप उठ के मेरे लिए सेरेलैक लेके आते थे. अब आपका शॉप छोड़ के, जॉब छोड़ के आप मेरे लिए भागते थे. दवाइयां, घुटी, नैपीज. मम्मी ने बोला नैपीज ले आओ तो आप मेरे लिए नैपीज ले आते थे. थैंक यू. थैंक यू डैडी, मुझे हर उस इंजेक्शन के लिए लेके जाने के लिए जो मुझे मेरी हेल्थ के लिए जरूरी था. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू डैडी, उस हर टाइम आपने जो मेरे लिए डाला. थैंक यू. हर उस पैसे के लिए थैंक यू जो आपने मेरे पीछे डाला है. मैंने कभी उसका थैंक यू नहीं किया आपको. थैंक यू डैडी फॉर ऑल दैट यू हैव डन. थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी that I remain healthy. Thank you for bringing all the nourishment food for me so that I may remain healthy. Thank you daddy. Thank you. दिल से शुक्रिया हर उस चीज के लिए जो आपने मेरे लिए की है. थैंक यू. Keep your hands on your head and feel that your father is blessing you. Whether they are there in this world or they are not there. Feel that आपके सामने वो बैठे और उनका हाथ आपके सर पे है and they are blessing you. And you're receiving the blessings. So thank you for those blessings. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Daddy. आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है. Thank you. Thank you. Thank you. Today, let's write gratitude for health. Yes. पैसे का तो हम रोज ही लिखते हैं. पैसे का हम ओरली करेंगे. मनी नोट हाथ Yes, में. yes.
Yes, so gratitude for health. So we will start right from each part of the body. Hmm. And think something differently. Not जो normal वाला हम हमेशा लिखते हैं. Think something differently. I am thankful to my brain. First, let's start with the brain. Because it wakes me up for the practices of gratitude. उठाता है ना मंजू मैम अभी अलर्ट करता है आपको अभी नहीं Yes, yes. नहीं होगा मेरे से कितना बोलते थे पता नहीं होगा कि नहीं नहीं उठने होता है सो उसके लिए थैंक यू बोलो आई एम थैंकफुल टू माय eyes that it shows me how good the nature, how good and beautiful the nature is. सिर्फ देखते ही नहीं है ना हम बहुत सारी चीजें हमको नेचर में भी दिखती है आई एम थैंकफुल टू माय ears that they help me to hear the birds chirping, hear good songs, and hear my loved ones speak to me. सोचो अगर कान आपके कान काम नहीं करते होते तो जो भी आपके अपने लोग हैं जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं आप उनको सुन पाते क्या आपके बच्चों का सुन पाते इतना No. डिफिकल्ट होता है ना एंड वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस बैक देन सो बी थैंकफुल कि योर इयर्स आर वर्किंग वेरी नाइसली सो आई एम थैंकफुल फील करके लिखो सिर्फ लिखो मत फील भी करो जब भी जो बॉडी पार्ट का आप लिख रहे हो ट्राई दैट यू आर टचिंग योर इयर्स लाइक दैट यू नो सो दैट यू आर एटलीस्ट फीलिंग दैट बिकॉज आज हम लिख रहे हैं ना बॉडी के लिए जब हम ओरली करते तो टच करते हैं सो आई एम थैंकफुल टू माय नोज बिकॉज it helps me to smell whether the food is fresh or no. And also lets me know the different attars and perfumes. हम नोट्स से सिर्फ ब्रीद नहीं करते हैं हम बहुत सारी चीजें करते हैं राइट आपको मेडिटेशन के लिए हेल्प करता है नोज आई एम थैंकफुल टू माय tongue because it
helps me know what I need to speak and what not to speak. टंगी बताती है ना, अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, क्या बोलना है, कब क्या बोलना है। मेड्स को बुरा बोलना नहीं है, मेड्स के ऊपर चिल्लाना नहीं है, नहीं तो भाग जाती है। So I am grateful to my neck. नेक लेते हैं अभी, because it balances my head and body together. फील करो अपने नेक को कि कितना अच्छा बैलेंस करते हैं, and also helps me when to say yes or no. है ना, नॉड करते हैं ना हम, कभी कभी यस करना है, हम सिर्फ गर्दन भी हिला देते हैं तो हाँ। सामने वाला समझ जाता है. सो आई एम ग्रेटफुल टू माई what chest, because it protects my rib cage and my loving heart. सोचो अगर हार्ट ओपन रहता हमारा तो कितना नुकसान हो जाता. तो हाउ नाइसली गॉड हैज प्लेस्ड, a rib cage on top of our heart also, so that we are protected. फील करो ये सब बॉडी ऑर्गन्स को कि यार कितने अच्छे तरीके से ऊपर वाले ने हमको गढ़ा है. एंड सी द क्रिएटिविटी ऑफ गॉड, द यूनिवर्स, हाउ इट हैज क्रिएटेड अस. चलो स्टमक के लिए लिखते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू माई स्टमक बिकॉज it digests my food so well. मैं जो भी डालती हूँ मेरा स्टमक बेचारा सब डाइजेस्ट करता है. सो बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट, राइट. मैं जंक भी खाती हूँ कभी कभी, तो भी मेरा स्टमक डाइजेस्ट करता है. It digests my food well and digests other people's stories and their secrets. पेट में छुपा के रखना, दूसरों की सीक्रेट बोलते हैं ना, अपने पेट में ही रखना. इसके पेट में तो कोई चीज रहती नहीं है, ये सबको बता देती है. तो पेट हमारा वो भी करता है, ये ध्यान करो. तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट कि आप दूसरों की सीक्रेट पेट में छुपा के, गट में छुपा के रखते हो. आई एम ग्रेटफुल टू माई हैंड्स because they help me to write my gratitude, practice, cook, and hug
माय लव्ड वंस। सोचो अगर आपके बच्चों को अगर आप हग नहीं कर पाते, जिनके हाथ नहीं होते हैं, उनको हमेशा ध्यान करना, जब भी आपका ग्रिप करने का मन करे ना बॉडी के लिए भी, वो पार्ट जिसके पास नहीं है ना, वो ध्यान कर लेना। You will start becoming very grateful for all your health. I'm grateful to my legs because they help me move from one room to another and help me in doing my walks in the garden or walking track. आपने legs के लिए लिखा, then I am grateful to my hips, जिनको हम बार बार भूल जाते हैं, because they help me bend and sit in different positions and feel the धरती माँ। हिप्स की वजह से आप बेंड कर पाते हो, नीचे बैठ पाते हो, प्रे कर पाते हो, राइट। हम माथा टेक पाते हैं, we are able to bow down in the prayer. So I am grateful और thankful, जो भी आप लिखना है, to my feet. We didn't write about feet, na? Grateful to my feet because they keep me balanced and wear different types of sandals, shoes, and chappals for every occasion. So be very thankful for that, कि आपके फीट में आप अलग अलग शूज, सैंडल, चप्पल पहन पाते हो, और वो फीट आपको बैलेंस रखता है विद द ग्रेविटी ऑफ दिस अर्थ. So I am grateful. What is left, which we missed? मैम हेयर, हाँ, बालों के लिए, बालों के लिए। okay, I'm grateful to my hair. Brain. We didn't write brain, na? Brain we wrote Memory. ना, brain Okay. हमने स्टार्ट ही ब्रेन से किया, मंगल मैम. Okay. हाँ, I'm grateful to my hair because it adds beauty to my face and enhances my look. देखो अगर हेयर नहीं रहते हैं ना, आप देखोगे कैंसर वाले पेशेंट्स को कितना तकलीफ होती है, दे फील ऑड, हमारी इमेज चली जाती है, हमारे जब बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं ना, तो हमको थोड़ा डर लगने लग जाता है कि यार मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरे बाल. बट ऑलवेज रिमेम्बर कि आपको कभी भी कंप्लेन नहीं करना है. इनफैक्ट कीप ऑन स्पीकिंग दी यू ऑलरेडी हैव. ओके.
So just close your eyes, and let's say thank you for your body. So whenever I'm saying any part also, if you want, you can touch that part of the body. So thank you, universe, thank you, God, for this beautiful, amazing, healthy, fit body जो आपने मुझे दी है. Thank you. इसकी वजह से मैं भाग पाती हूँ, दौड़ पाती हूँ, मैं हर काम कर पा रही हूँ. थैंक यू. थैंक यू मेरे इतने अच्छे ब्रेन के लिए जो इतनी नई नई आइडियाज सोच पाता है मेरे काम में. मैं भले घर का काम करूँ या बाहर ऑफिस में करूँ. थैंक यू. थैंक यू मेरे इतनी अच्छी आंखें, मेरे इतने अच्छे कान देने के लिए, जो रोज अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रहे हैं. मुझे उनको बोलना नहीं पड़ता है कि आंखें ये देखो, कान ये करो. मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक बॉडी जो हर ऑर्गन हर अपने आप फंक्शन कर रही है, उसके लिए शुक्रिया. मुझे उसको सजेशंस नहीं देने पड़ते कि आप ये करो. मैं जैसे खाना डालती हूँ कि मेरा डाइजेशन प्रोसेस चालू हो जाता है. थैंक यू. थैंक यू फॉर द स्टमक, थैंक यू फॉर द लिवर, थैंक यू फॉर द किडनीज, द पैंक्रियाज, जो अपने आप अपना सब काम करते हैं. मुझे उनको कमांड नहीं देना पड़ता है. थैंक यू. इतनी अमेजिंग वंडरफुल बॉडी देने के लिए शुक्रिया खुदा, शुक्रिया. थैंक यू. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू. आपने मुझे जो ये बॉडी दी है उसके लिए दिल से शुक्रिया. थैंक यू. मैं हर वो काम कर पाती हूँ बिकॉज मेरी बॉडी अच्छी है. और जो भी छोटा मोटा लैक ऑफ डिजीज और ब्रेकडाउन मेरी हेल्थ में है, आई नो आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट बैक and live a robust life because I am in gratitude. एंड मुझे पता है मैं उसको भी ओवरकम कर लूंगी. जो भी छोटा मोटा मेरी हेल्थ बॉडी में जो भी ब्रेक डाउन है उसको ओवरकम कर लूंगी. थैंक यू. थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग एंड ब्यूटिफुल बॉडी विच आई हैव, जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की. आई एम सॉरी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी and not keeping in myself in front, thinking just about other people and other things, and then looking into my body. Thank you. Thank you for helping me and giving me this good health. Thank you, universe. दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया. Thank you. Thank you. Thank you. Open your eyes. Let's take your money note. Take my money note. Take your money note. And हम उसको भी blessings देंगे. ठीक है. We'll bless the money note. Take it in your hand. Feel करो उस money को and feel the abundance of money and just say in your mind, thank you for all the money that has been given to me throughout my life. Feel करो आपके पास बहुत पैसा है. कभी भी हमको lack के बारे में बात नहीं करनी है. Even if there is lack, हमेशा अपने आप को rich feel कराओ. Thank you money for coming to me in all the forms. फिर वो कैश हो, फिक्स डिपॉजिट्स हो, ज्वेलरी हो, म्यूचुअल फंड्स हो, शेयर्स हो. थैंक यू मनी फॉर कमिंग टू मी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, जो मुझे दे के जाते हैं लोग और मुझे पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है और वो गिफ्ट्स मेरे पास आ जाते हैं. थैंक यू फॉर ऑल दैट सेविंग्स विच आई डू थ्रू दैट. Thank you for my bank balance. Wow,
रोज मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एंड रोज मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपके अकाउंट में ये पैसे जमा हुए हैं। आई नेवर फील द लैक। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी that is coming to me, that I'm able to buy my beauty products, my medicines, pay my medicinal bills. Thank you for money, कि आपकी वजह से मैं कपड़े खरीद पाती हूँ, वो प्यारे प्यारे लवली ब्रांडेड पर्सेस खरीद पाती हूँ, और वो जो चप्पल जो मैं देखते बराबर मेरे मन में होता है मैं खरीद लूं, वो खरीद पाती हूँ। थैंक यू मनी। और मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने जब भी माइंड में कोई चीज देखी है और पाने की इच्छा की है, वो मुझे मिल जाती है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। कभी हस्बैंड पे कर देते हैं, कभी फादर पे कर देते हैं, कभी फ्रेंड्स पे कर देते हैं होटल का बिल, कभी बच्चे पे कर देते हैं। वाओ, कितना अमेजिंग है ना कि मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मुझे रियलाइज नहीं होता है। थैंक यू मनी। थैंक यू फॉर कमिंग टू मी इन ऑल द फॉर्म्स। फ्री में खाना मिल जाता है कभी कभी। यार, फ्रेंड मिल गई आज, उसने चाय पिला दी, वड़ा पाव खिला दिया। वाओ, मुझे तो पैसे नहीं भरने पड़े। थैंक यू फॉर दैट मनी विच आई सेव्ड। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे रियलाइज करने के लिए कि पैसा तो मेरे पास हर फॉर्म से आ रहा है। कभी ज्वेलरी, कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कभी गोल्ड, कभी सिल्वर, कभी किसी ने कोई गिफ्ट फ्लावर्स दे दिया, कभी किसी ने कोई म्यूजिक सिस्टम दे दिया, कभी किसी ने कोई डायरी पेन, सब मिल रहा है मुझे। बट मैं वो छोटी चीजों को देख ही नहीं पाती हूँ। कभी फ्रूट्स आ जाते हैं घर में फ्री में, कभी मिठाइयाँ आ जाती है, कोई शादी का कार्ड देने आता है तो उसके साथ में मुझे गिफ्ट दे जाता है। थैंक यू फॉर ऑल दोज गिफ्ट्स। मुझे तो पैसे में नहीं खर्च करने पड़े। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ऑल दैट मनी विच इज फ्लोइंग टू मी इन अबंडेंस। और थैंक यू मुझे रियलाइज करने के लिए कि यस, आई हैव सो मच ऑफ मनी, एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि पैसा नहीं है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट मनी, कि मैं पैसे का सर्कल चला पाती हूँ। अपने से छोटे लोगों का, भले 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, दे पाती हूँ। चैरिटी करनी हो तो उसमें दे पाती हूँ। थैंक यू मनी, बिकॉज ऑफ यू मैं चैरिटी कर पा रही हूँ। नोइंगली अननोइंगली मुझे जिनको हेल्प करना, मैं हेल्प कर पा रही हूँ। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू मनी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। दिल से थैंक यू फॉर ऑल द लवली डिलिशियस फूड्स जो मैं खा रही हूँ, जो गिफ्ट्स, जो पार्लर सर्विसेज आई एम एंजॉयिंग, द गिफ्ट्स फ्रॉम माय चिल्ड्रन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज बीन गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ, जब मैं कमाती भी नहीं थी तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए पे करते थे, या मेरे हस्बैंड मेरे लिए पे करते थे, या मेरे बच्चे मेरे लिए पे करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी that has been given to me throughout the life. Thank you, thank you, thank you. So when you start charging your money like that and become thankful, जब भी पैसा आता है, please make it a point that every day you're doing the circle of money. आप जितना दोगे उतना आपको रिटर्न में आता है। फ्लो ऑफ मनी तभी होता है। सर्कल करो, सर्कल ऑफ मनी बढ़ाओ। आप भले 2 रुपए दो, पर दिन में देना चालू करो। 2-3 लोगों को भी आप एटलीस्ट अगर 2-2 रुपए भी देते हो, मोर देन इनफ। जरूरी नहीं है कि आपको 20-20 रुपए, 50-100 रुपए देने, बट अगर आप छोटा सा भी सर्कल ऑफ मनी चलाते हो, यू विल सी
money increasing in your life. So, because what you give comes back to you in tenfold. Understand what does the magic book says? कि whatever you give comes back to you in tenfold. जब ये चीज आपके दिमाग में आप याद रखते हो कि मैं जो भी देती हूँ, पर ऐसे इंटेंशन करके नहीं देना है कि हाँ मैं दूंगी तो मुझे आएगा ही आएगा, क्योंकि वो दूसरे मेथड से किधर से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. इट कैन कम इन द गिफ्ट फॉर्म, इट कैन कम इन ज्वेलरी फॉर्म, इट कैन कम इन टू द फ्रूट्स फॉर्म. कोई भी आपके घर में फ्रूट दे के चला जाएगा, स्वीट्स मिठाई दे के चला जाएगा. It will come in different forms, but you don't have to put that intention and give. But intention ये कि जिसके भी घर में जाए उसको ब्लेस हो, उसके हर सपने पूरे हो. ये जब आप ब्लेसिंग करके पैसा देते हो तो आप देखोगे मनी आपकी लाइफ में भी इंक्रीज होता है. मेरी लाइफ में तो हो रहा है. ओके, सो आप देखो, मेरी लाइफ में तो हो रहा है. सो आप देखो आपकी लाइफ में आपको कैसे अबंडेंस इंक्रीज करना है. डोंट कंप्लेन अबाउट मनी. जब भी ऐसे रियलाइज होता है कि यार मन में वो थॉट आ गया कि यार पैसा नहीं है, इमीडिएटली आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू मनी, सॉरी मनी, प्लीज, थैंक यू, वो इमीडिएटली बोल दो. इमीडिएटली बोल दो ताकि आप नेगेटिव इमोशन में से पॉजिटिव में आप चले जाओ. यस मंगल मैम, यू हैड सम क्वेश्चन. Actually, I wanted to share that day I went to Reliance, na. So whatever it is, 2,500 का हो गया. So she said कि you will get the trolley bag in 1,000, 9,000 का है तो you will get in 1,400. इससे free है. So it is like something I was like happy. 2 trolley bags we bought it with 2,500 पे कितना मेरा हुआ this 600 and the bag cost was 9. They wanted to do the promotion of that trolley bags. So I was very happy that day. वाह. We got like I was doing that money circle ओके. last 4 5 days. Usually what I used to do the ये फोन से हम लोग करते डिजिटल. But after that I am doing like I am like keeping the cash in my hand. I am giving it. And that I like it is amazing when you give a यस, cash now that it is totally different experience ट्रू, दैट इज rather व्हाट. than paying by phone. सी So it देखो, is पैसे तो really हम good. पहले भी हम देते थे लोगों को, राइट. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. पैसे तो हम पहले भी देते थे, कभी कोई Yes, गरीब मिल yeah, गया कभी. बट जब अभी हम ब्लेस करके देते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है अपने माइंड में. वट एवर यू डू फॉर अदर पीपल इन द स्मॉलेस्ट थिंग्स ऑल्सो, ऑलवेज रिमेम्बर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो टर्न होके आपके पास आनी ही आनी है, आनी ही आनी है. इट विल कम इन एनी फॉर्म, बट इट विल कम टू यू, इट विल कम yes. टू यू. ओके. I am to be like this is magic happening in every moment and every day. I am very Very happy. good, Dr. Mangal. I'm really happy for you, I'm really happy. And I do the practices like करती हूँ मैं. I don't want Amazing. to miss anything. So I really am getting benefited. It is Yes. not कि I'm not. I देखो am ये getting प्रैक्टिस benefit. से तो बेनिफिट ही होगा, किसी का नुकसान तो होता ही नहीं. बिकॉज दिस इज नॉट Yes, रिलेटेड टू एनी रिलीजन, दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, बट इट इज अ माइंडसेट चेंज what we are doing. And when we do a mindset change, you see, you start attracting yourself only. बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ऐसे ही आनी शुरू हो जाती है. यू डोंट एक्सपेक्ट ऑल्सो, आपने कभी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं की होगी ना, ऐसी ऐसी चीजें आनी शुरू हो जाती है. सी नाउ बिकॉज मंगल मैम यू हैव कम इन टू प्रैक्टिसेस, सो नाउ यू आर yes, अंडरस्टैंडिंग दैट कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है. yes, और हम एक दिन नहीं करते हैं ना तो उसके अंदर भी देखो आपको वो गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है कि यार नहीं. yes, yes. I ये feel. होता है, ये होता है. यू वन डे यू डोंट डू तो वो गिल्ट में आना शुरू हो जाता है कि यार आज मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं बोला, यार आज मैंने ये नहीं किया. तो whenever And even in ma'am, your kitchen, in the food, cooking food, doing any work, आपके ऑफिस के भी काम में थैंक यू बोलते रहो, हर चीज में थैंक यू बोलो. Yes. आप देखोगे how much difference it is making into your life. Yes मंगल मैम. नहीं ये मैम, मैं बोल रही थी. अच्छा बोलो. हाँ बोलो बोलो. हाँ मैम, मैं बोल रही थी दिस इज लाइक अ एक्सरसाइज टू अवर ब्रेन. जो जो भी हम करते हैं इट्स लाइक अ एक्सरसाइज टू अवर ब्रेन, एंड इट कीप्स ऑन रिमाइंडिंग अस इन बिटवीन, लाइक
कभी भी थैंक, जो भी अच्छी चीज होती है उसको एटलीस्ट हमारा ब्रेन हमको रिमाइंड करता है कि हमको यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट। हर एक छोटी अर्लियर छोटी ये चीज नहीं में होता थैंक। था। यस। और ऐसा नहीं कि अच्छी चीज हो रही तो ही थैंक यू बोला। आप जब पहले से कोई काम भी करना शुरू करते हो ना, आप थैंक यू बोलते हो ना, आप देखोगे वो चीज बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। यानी हमने पहले से शुक्रिया बोल दिया उस चीज को, वो चीज इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको खुद को समझ में नहीं आता कि यार कैसे हो गया। लाइक यस्टरडे मैम, किसी ने मुझे कॉल किया एंड दे सेड दैट इमीडिएटली उनको टिकट इशू करवाना है, तो मैंने तुरंत इशू करके दिया। तो रात को बिफोर ट्रांसफरिंग द मनी शी टोल्ड मी थैंक यू, आपने मुझे बहुत लाइक आई वाज इन नीड एंड यू हेल्प मी, सो दैट थैंक यू वाज आल्सो वेरी वैल्यूएबल, जैसे मुझे यस। सुनने भी अच्छा लग रहा था। आपको भी अच्छा लगता है, आपको कोई थैंक यू बोलता है ना तो हमको भी अच्छा लगता है, दिस अ गुड फीलिंग। सो सी थैंक यू ब्रिंग्स अ गुड फीलिंग। तो फिर आप वो थैंक यू बोलो, आपकी भाषा में बोलो, जो भी आपको बोलना है, बट टू बी इन दैट ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना उसको अपनी लाइफ में लेके आते हो ना, आप देखोगे इतना, मैं तो अमेजिंग रिजल्ट्स देख रही हूँ। अमेजिंग रिजल्ट्स। Yes, मंगल मैम नोज दैट। yes, I mean I when I see her now, that smile, yes, and that Mangal when I had seen her during land of yes. Six is months back very and very now I'm different. totally different. Yes. Different, free of everything, Yeah. इसका Now I स्ट्रेस नहीं have a लेना है no कोई। stress, nothing, no यस। stress. कोई चीज का स्ट्रेस नहीं लेना, बिकॉज जो चीज होनी है वो तो होनी है, उसको हम चेंज नहीं Yes, कर सकते हैं, राइट? बट इफ यू आर इन ग्रेटिट्यूड, you will see amazing results। आपको खुद को पता नहीं चलेगा, बिकॉज सी वरिंग इज नॉट गेटिंग एनी सोल्यूशन। टेंशन लेना सोल्यूशन नहीं ला रहा है। इनफैक्ट आप और ज्यादा गिल्ट, और ज्यादा गिल्ट, और ज्यादा गिल्ट, गुस्सा, वरी उसी में चले जाते हो। अरे यार आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने वो नहीं किया, अरे ये नहीं हुआ। नहीं, ठीक है ना, इट्स ओके। बट वेन यू स्टार्ट सेइंग थैंक यू, आपके काम, मैंने तो ये भी देखा, जिस दिन मेरे से काम नहीं होता रहता ना, मुझे बहुत बोर फील होता है, मैं उस दिन वो ही काम के अंदर पहले से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू, मुंह में कंटिन्यू सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ, सिर्फ थैंक यू। और वो काम कब हो जाते हैं ना मेरे, जो चीज में मेरे को सच में बोर लगता है करने के लिए, वो काम कब हो जाते हैं ना, पहले ऐसे मन में आता है, यार अभी नहीं, क्लोथ्स फोल्ड करती हूँ, जाने दे यार, ड्राई हो गया, अभी सोफे पे रख देती हूँ, सुबह में करूंगी। बट सडनली व्हाट हैपेंस, आई जस्ट स्टार्ट सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड फिर वो ऑटोमेटिकली आई पिक अप दैट क्लोथ एंड आई फोल्ड इट एंड आई कीप। तो वो कब हो जाता है, काम ऐसे समझ में ही नहीं आता है, बिकॉज आई जस्ट स्टार्ट थिंक थैंक यू दैट टाइम। You yes, use and see the smallest of your thing, in your household work, anything, office work, थैंक यू पहले से ही थैंक यू बोलना शुरू कर दो। आप ऑफिस में एंटर होते हो, थैंक यू थैंक यू, इतना आप देखो, इतना अमेजिंग आपका दिन जाता है ना उस दिन। बट वो क्या होता है ना, हमको याद नहीं रहता है, हम इतने yes. भागदौड़ में रहते वो हैं, हाँ. फटाफट हमको सिर्फ पहुंचना रहता है, बिकॉज हम जब घर से निकलते हैं ना तो हमारा माइंड वहां डाइवर्ट हो जाता है, कहाँ पे, कि जहाँ पे हमारा काम शुरू होने वाला रहता है, तो हमारा दिमाग वहां पे चला जाता है कि अभी ऑफिस में जाके ये करना है, इसको मिलना है, ये मीटिंग है, ये वाले टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, एक्सेल शीट में ये कंप्लीट करना है वो। तो हमारा माइंड, जैसे हम घर से निकलते हैं काम पे जाने के लिए भी, हमारा माइंड उधर चला जाता है, राइट? मैं भी जब प्रिंसिपल थी तो मैं भी तो वही करती थी, मुझे पता है। बट जब हम ये जर्नी में स्टार्ट हुए ना, देन आई स्टार्टेड, बिफोर आई रीच, आई वाज कंटिन्यूअसली ओपन ओपन, आई यूज्ड टू डू फॉर माय डॉटर आल्सो फॉर दैट स्किन का थिंग एवरी डे, तो आई kept completely myself, till I reached the school उसी में, ताकि फिर आपका वो, यू स्टार्ट योर डे विथ थैंकफुलनेस, आप हर एक चीज के लिए थैंक यू पहले से बोलना शुरू कर देते हैं। द मोमेंट देन यू एंटर, एंटर योर कैबिन, वेर एवर यू आर, जस्ट से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड यू ऑफिस के टेबल पे बैठ रहे हो, आपके कंप्यूटर को थैंक यू, एवरीथिंग यू जस्ट सेइंग थैंक यू। इवन इफ यू जस्ट कीप सेइंग थैंक यू, फॉर एवरीथिंग यू लुक इनटू, आपके सामने आपका कंप्यूटर है, आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, यार पेन है, पेन को देख के थैंक यू बोल दो, सीधा अमेजिंग रिजल्ट्स छोटी छोटी चीजों में। ओके, सो लेट्स वाइंड अप। चलो, यस हैव अ मैम, नाइस डे, Okay, गॉड thank ब्लेस यू you. ऑल थैंक फॉर यू मैम। ज्वाइनिंग, हैव अ blissful blissful day, come on, thank you, thank you, Thank, thank you। thank you. Yes.